صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ نے تو حال دل اپنا بلکہ دردمندانہ اپیل بھی کر دی اپنی ٹویٹر ٹائم لائن کے اوپر۔ کیا مقصود تھا سر آج دن بھر کی اس پروسیڈنگ سے، اتنے ڈیلے سے، اور جو دن بھر ہم نے دیکھا سنا محسوس کیا اس سے کیا حاصل کیا ہے حکومت وقت نے یا عمران خان صاحب نے؟ اتنا افسوس، اتنا شدید افسوس اور بالکل دل شکستہ ہے کہ آخر ہم کس پاکستان میں کس انداز کا کیا زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ اور اس انداز کی انا، اس انداز کی ضد، اس انداز کا تکبر، اس انداز کی یعنی کہ حکمرانی اور ذرا ملک اور قوم کا درد اور اس بات کا احساس نہیں کہ کس طرح سے پورے 22 کروڑ عوام کو اس پوسٹ میں مبتلا کر رہی ہے یہ لیڈرشپ اور یہ عمران خان صاحب۔ آخر جو لوگ ان سے لگاؤ رکھتے تھے، بڑی تعداد میں لوگ تھے، اور اس میں تو حالیہ ہفتوں میں تو اضافہ ہی ہوا تھا، لیکن یہ سب انہوں نے ایک گھنٹے میں اور چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو آگ لگا رہے ہیں، اور اس بات کا بالکل ان کو احساس نہیں ہے کہ جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ انتہائی نہ صرف یہ کہ غیر مقبول ہے، بلکہ وہ ان کی جو رہی صحیح ساکھ ہے وہ اس کو خاک بنا رہے ہیں اس کو۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ملک کس کیفیت سے گزر رہا ہے، جس طرح سے بھی ہوا ان کے جو اراکین تھے یا ان کی پارٹی کے لوگ تھے یا جو ان کے دوسرے حمایتی تھے، جو اتحادی تھے، تو سب چلے گئے، وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئے، کوئی بک گیا، کوئی خرید لیا گیا، کیا کسی انداز سے بھی ہوا، وہ ہر لحاظ سے اپنی اکثریت کھو بیٹھے، وہ اپنا حق حکمرانی کھو بیٹھے ہیں، وہ ہر لحاظ سے اخلاقی، آئینی، قانونی لحاظ سے اپنا حق حکمرانی کھو بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا اس بات پہ اصرار، ضد، اور ان کی اس بات پہ ان کی مسلسل ضد کہ وہ اب اقتدار سے تراجمان رہیں اور کسی صورت سے وہ کنارہ کشی اختیار نہ کریں۔ یقیناً یہ مورخ جو ہے وہ ساری پاکستان کی جب تک تاریخ لکھی جائے گی اس باب کو کبھی بھی جو ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور عمران خان صاحب نے جو لیگیسی چھوڑی ہے اس وقت مجھے تو بہت ہی افسوس ہو رہا ہے، شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں، ہم کس دور میں ہم یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہم سب تماشائی ہیں، اور پورے یہ 22 کروڑ عوام کچھ نہیں کر سکتے، اور ایک شخص اپنی انا کے لیے، اپنی ضد کے لیے اور اپنی نہ جانے کون سی پیاس بجھانے کے لیے انتقام کی یا اپنی جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے جو عمل وہ اس وقت کر رہے ہیں۔ کاش یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن انہوں نے کیا ہے، اور اپنی ساتھ کو بھی بری طرح سے انہوں نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اس جماعت کو بھی۔ اور دیکھیں ہمارے لیے بڑی ضرورت ہے، ہمیں ایک اپوزیشن چاہیے، ہمیشہ ہمیں ایک اسٹرانگ لیڈرشپ چاہیے جو کہ دوسری آئل کے دوسری طرف بھی بیٹھے۔ یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو جی دوسری طرف ہے یہ چار بار حکمرانی کر چکے ہیں، یہ پھر آئیں گے، پھر حکمرانی کریں گے، ان کے اطوار، ان کی ماضی، ان کے طریقے وہ سب ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسی لیے انتہائی ضروری ہے کہ عمران خان کی کچھ ساتھ برقرار رہے، عمران خان کی سیاسی قوت برقرار رہے، ان کی اپوزیشن مضبوط ہو، اور وہ عمران خان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ مگر یہ عمران خان کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ، اور یہ کیا کر رہے ہیں اپنی اس پاکستان کی ضرورت کے ساتھ جو کہ پاکستان کو ضرورت ہے۔ کل کے بعد ہمیں ایک مضبوط اپوزیشن چاہیے، ہمیں ایک مضبوط تیسری قوت چاہیے، ہمیں ایک مضبوط ایک انڈیپینڈنٹ ان خاندانی اور یہ جو وراثت والی سیاست ہے اس سے علیحدہ ایک ہمیں لیڈرشپ چاہیے، مگر وہ لیڈرشپ خود اپنے آپ کو آگ لگا رہی ہے۔ بہت شدید افسوس ہے خان صاحب بالکل، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں، کیا مقصود تھا انہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ آپ نے بالکل درست اس کا تبصرہ فرمایا۔ یہ فرمائیں کہ اب اس صورتحال میں جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے، اداروں کی ہاں کس حد تک بے چینی ہوگی، ریاست کے ہاں کس قدر تشویش ہوگی، بین الاقوامی فرنٹ پر ہماری آج کتنی سبکی ہوئی ہوگی؟ دیکھیں ابھی تو سب اتنے قصوروار ہیں، اور یہ سب گردن کا جس میں ان کا قصور ہے، صرف قصور نہیں ہے تو پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کا انداز سے قصور نہیں ہے، ورنہ یہ تمام ادارے جو ہیں وہ اس میں قصوروار ہیں۔ یہ تمام شخصیات بھی ابھی نہیں بدلی ہے، ابھی تو اداروں کی بات آپ چھوڑ دیں، ابھی تو وہ شخصیات بھی نہیں بدلی چلی گئی اداروں کی جو کہ اس کے 100% ذمہ دار ہیں۔
पाकिस्तान को इस जगह पे पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। किसी भी इदारे के, किसी भी आप बड़े की आप इस वक्त आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा। कुछ हम स्केप बोर्ड बना देते हैं, एक आध नाम ले दिया, फला ले दिया। हमने से किसी की हिम्मत नहीं है, ना आज की ये जो कल की अपोजिशन और आज इक़्तिदार में जाने वाले हैं, ना असल फरीकैन की बात कर रहे हैं। बस जिसका काम चल गया वो आगे बढ़ गए, सब इसमें इन्वॉल्व है। कौन इदारे की बात, तो इदारे तो है, तो उसकी शख्सियात भी वही है, तो कुछ नहीं बदला है। लेकिन ये कि फिलहाल जिम्मेदारी कोई लेगा नहीं, कोई इसको तस्लीम नहीं करेगा। हमने बहक अपना पूरा हक अदा किया है। आखिर अब आप देखिए ना, चाहे कुछ भी हो। कामरान साहब एक रहनुमाई जरा करें कि पाकिस्तान के अंदर अदालत उज़्मा के इस फैसले को पूरे मुल्क के अंदर पजीराई मिली। अब इस फैसले पे अमल दरामद के लिए क्या पाकिस्तान की अदालत उज़्मा कुछ और अदारों को कहेगी? जब सियासी लीडरशिप जिद और हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है, फैसले पे अमल दरामद कैसे होगा? 190 के तहत, अगर मैं सही कह रहा हूँ, आइन के तहत उसको इख्तियार है पाकिस्तान के किसी भी इदारे से कहें कि जाके इस पे अमल दरामद कराए और इस फैसले पे अमल दरामद कराए। पूरी कौम को जो है टांग के रखा हुआ है इस पोस्ट को, और इस जो इस वक्त जिंदगी जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऐसी एडमी को आज़ाद कराएं। सुप्रीम कोर्ट की इस बात का इख्तियार है, तो पाकिस्तान के किसी इदारे से कह सकती है कि इसी वक्त इस पे अमल दरामद कराए और इस कौम को इस तशद्दुद से आज़ाद कराए। ये खाली फैसला करने से तो नहीं होता ना। अगर अदालत का कोई फैसला, एक गरीब जो होता है, अगर उस पर अमल दरामद करना हो, तो आपने भी देखा था कि कराची में जो है कई मंजिला इमारत गिरा दी थी और दर्जनों लोगों के वो तबाह बर्बाद कर दिए थे। इमारत एक इशारे पे उन्होंने जमीन बोझ कर दी थी, तो वो क्योंकि गरीब थे तो उनकी इमारत आपने जमीन बोझ कर दी। अभी पूरे पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और क्योंकि ये बड़े लोग हैं या कोई बड़ी जमात है या कुछ है, तो उस पर कोई अदालत मूव नहीं कर सकती। बस अब अल्लाह ताला ही पाकिस्तान पर रहम करे। और आप लोग कामरान साहब एक और चीज इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अपोजिशन के एटीट्यूड को कैसे देख रहे हैं? ये अपोजिशन जो है, मैं समझता हूँ कि अभी तक तो उनका जो भी रद्द अमल रहा है, जो सारी चीज रहा है, वो माकूल है। मतलब देखिए, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि एक तो पार्लियामेंट में उनकी इस वक्त अक्सरियत है। वो मॉरल ग्राउंड पे और कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ग्राउंड पे वो ये मैच जीते हुए हैं। दूसरी तरफ ये कि अदालत के अंदर वो जीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में आ चुका है। तो अगर इस वक्त थोड़ी वक़ार से और यह थोड़ा सा माकूल अंदाज में अपना उनका जो भी तौर है, तरीका है, तो वो यकीन है उससे तो अभी कोई फिलहाल शिकायत नहीं की जा सकती। और इस वक्त उनका हक है और फौरी तौर से इंतकाल इक़्तिदार होना चाहिए, ताकि मुल्क आगे बढ़े। सर, इस तरह से हम ये दिन गुजार रहे हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस वक्त मुल्क की कैफियत क्या है। हमारे रिजर्व जो हैं, हम बमुश्किल जो है वो 2 महीने के हमारे पास रिजर्व रह गए हैं। हमारा डॉलर इस वक्त 190 तक पहुंच रहा है, ओपन मार्केट को वो मिलता नहीं है। हमें एक्सटर्नल लायबिलिटीज करनी है। हमारे रोल ओवर चाइना ने लोन नहीं किए हैं, जिसकी वजह से हम शदीद प्रेशर के अंदर हैं। हम पूरी दुनिया के इस वक्त निगाह में एक मजाक बन चुके हैं, और हम उस मजाक को टूल देना चाहते हैं, हम इस मजाक को टूल खींचना चाहते हैं, हम इसको मजीद चलाना चाहते हैं कि ये 1 घंटा 1 मिनट भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सिलसिला खत्म। अंदाजा नहीं है कि ये मुल्क जो है ये अपनी बका, इसकी अपनी माशी बका की जंग लड़ रहा है। इस वक्त हमारे पास हमारे रिजर्व पूरी तरह से खत्म हो रहे। जरा सा कोई एक कुछ आया, हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। हम डिफॉल्ट के सहारे खड़े हुए हैं। IMF जो है वो हाथ झाड़ के खड़ा हो चुका है। हमें फौरी हुकूमत चाहिए, फौरी निज़ामी हुकूमत चाहिए, हमें फौरी सिंध चाहिए, हमें माशी सिंध चाहिए, हमें फौरी तौर पे सर्वाइवल मोड के अंदर आने हैं। हम किधर ये मजाक में लगे हुए हैं और हम तमाशा बना रहे हैं अपने आप को, और पूरी कौम जो है वो बेचारी यार और मददगार है वो इस वक्त, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये इदारे जो है हमारे सर पे ये लाद दिया है। ये सारी चीजें ये बात की कहानी तो नहीं है ना। हम देख नहीं रहे कि पिछले 5 साल से यहाँ क्या हो रहा है और किस तरीके से इंसाफ दिया जा रहा है और किस तरीके से इदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। क्या हम भूल गए हैं? क्या सिर्फ जो कुछ हुआ है अभी हुआ है? अब अगर हो गया है तो खुदारा इससे तो छुटकारा हासिल करे और आगे चलने की बात करें।
किसी सूरत से गाड़ी को आगे बढ़ाएं और इस तमाशे को आज खत्म करें, और आज खत्म करें, वरना ये कब कैसे ये तमाशा आप जारी रखेंगे। ये सर्वाइवल की बात है, आपके मुल्क के रिजर्व खत्म हो रहे हैं, आपके इकोनॉमिक सर्वाइवल है वो इस मुसीबत में, आप डिफॉल्ट के किनारे खड़े हैं। आपके चाइना जैसा मुल्क आपके जो डेट है, जो लोन है वो रोल ओवर नहीं कर रहा है, वो भी अपने जो उनकी अदायगी हमने करनी थी उन्होंने की, और उनको रोल ओवर करना तो उन्होंने नहीं किया। इसकी वजह से ये एक दिन के अंदर हमारा जो रुपया है 4 रुपए गिर गया डॉलर के मुकाबले में। किसी को अंदाजा नहीं है इस बात का कि हम किधर खड़े हैं। लेकिन कामरान खान साहब, कुछ माहिरीन का ये भी ख्याल है कि शायद ये डॉलर जो बेलगाम हुआ है इसके पीछे भी रजीम चेंज करने की आलमी साजिश है। हर चीज साजिश नहीं है। जिस मुल्क के पास 11 बिलियन डॉलर रह गए हो, 22 करोड़ का मुल्क हो, 11 बिलियन डॉलर एप्पल एक दिन में कमाता है, उसके बाद साजिश की क्या जरूरत है? जब आपको अपने जो एक्सटर्नल लायबिलिटी के आपकी जो है वो आपको दे रहे हैं, जब आपके जो सर्कुलर डेट के अंदर आप 1.5 अरब रुपए रोजाना लुटा रहे हो, आप देने के लिए हर रोज आपका 1.5 अरब रुपए, हर रोज 1.5 अरब रुपए आपका सर्कुलर डेट बढ़ जाए, आप 2600 अरब रुपए के सर्कुलर डेट पे खड़े, आपको किस दुश्मन की जरूरत? अच्छा, तो मैं किसी और की तरफ थ्रो भी कर सकता हूँ। वेरी ट्रू। आपको किस साजिश की जरूरत? आपने अपने ट्वीट में दुहाई दी है मोतमदीन की जानिब से भी, उनको पुकारते हुए रुफका की जानिब से भी। क्या हमारी सियासी जमातों के रहनुमाओं के पास वाक़यातन ऐसे कॉम्पिटेंट या दिल रखने वाले, हिम्मत रखने वाले मोतमदीन या रुफका नहीं होते, या फिर जो हमारी लीडरशिप होती है वो अना की ऐसी मेराज पर जा पहुँचती है कि उन पर कोई मशवरा असर नहीं करता? सर वो बदला ले रहे हैं, वो बदला ले रहे हैं। किससे? पीटीआई की जो लीडरशिप है वो बदला ले रही है। वो कह रही है आपने हमारे साथ किया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो उनके अराकीन थे उनको खरीदा गया है। अगर वो बिके हैं ना तो खरीदा गया है। भाई क्यों थे आपके ऐसे अराकीन जो खरीदे या बिके जाते हैं? क्यों आपके ऐसे इत्तेहादी थे? किस बेसिस पे थे? तो इमरान खान को पता नहीं थी कि 11 आदमियों की मेजोरिटी से वो हुकूमत कर रहा है, तो सिर्फ एमसीएम को तो संभाल रहे, ये 7 आदमी चले जाएंगे तो उसकी हुकूमत गिर जाएगी। तो ये कोई यानी कि कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी ना कि आपकी हुकूमत एक इशारे से गिर जाएगी। जब जिस सहारे पे खड़ी थी तो क्यों मुसीबत आई थी? क्यों ही अक्टूबर के अंदर जो है, सितंबर में आपने अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी कर दिया था? आपको नहीं पता था कि इसकी कॉस्ट है, और फिर उस कॉस्ट को पूरी फॉर्म अदा कर रही है। और फिर इस 20-3.5 वर्षों में खुद से नोटिफिकेशन पे आपको पता नहीं है पाकिस्तान में नोटिफिकेशन की क्या कॉस्ट होती है। हाँ साहब, अगर एक मफरूज़ा सूरत हाल में हम ये समझें कि अभी इमरान खान साहब आते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि जनाब मैंने ये सारा आज का दिन इसलिए किया कि मैं 2 बातें इस्टेब्लिश कर सकूं। एक तो ये कि जो कुछ मेरे साथ साजिश हो रही थी मैं उसका पोल खोल सकूं, और जो कुछ मैंने इस मुल्क के लिए ये किया वो मैं रिकॉर्ड पे ला सकूं। तो लिहाजा अब मैं स्टेप असाइड कर रहा हूं, या मैं कह रहा हूं कि आप वोटिंग करवा दें, और मैं नहीं मानता कि अदालत पार्लियामेंट के मामले में दखल दे सकती है, तो 12:01 में वोटिंग शुरू हो जाएगी। क्या ये चीज़ उनको जो पहुंचने वाला डैमेज आज पूरे दिन में वो बचा लेगा? मैं हमीद भाई आपकी बात पूरी तरह से समझ नहीं सकता, पूरी तरह से आवाज मुझे नहीं आई है। अगर आप मुख्तसरन अगर रिपीट कर दें। अच्छा कामरान साहब, अभी कामरान शाह साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं।